Assalamu alaikum. Today we are going to discuss chapter number 3 that names the United Nations. ये chapter बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है but I'll try to cover it and make it as easier as possible. So let's get started. In the spring of 1945, the Second World War was coming to an end. The war had brought misery to all over the world. Millions of people had been killed and wounded. These included women and children. Millions of pounds worth of property had been destroyed. Millions of people had been made homeless. Millions suffered from poverty, hunger, and disease. The conscience of man was roused. Man wanted peace. Let there be an end to war. Let there be peace and goodwill on earth. Let man live with his fellow men as brother and brothers. सो प्रेड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो हुआ ये था कि 1945 की बात बता रहे हैं, स्प्रिंग्स में जब सेकेंड वर्ल्ड वार एंड पे आई थी, तब इतनी ज़्यादा तबाहियाँ हो चुकी थी उस टाइम तक। मिलियन की तादाद में लोग जो थे, सैकड़ों की तादाद में लोग बेघर हो चुके थे, बहुत लोग मर चुके थे, जिनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। बहुत लोग माजूर हो गए थे, बहुत लोग गुर्बत का शिकार हो गए थे, बीमारियों में पड़ गए थे, भूख से मर रहे थे। फिर इंसानों को ये बात समझ आए कि नहीं, हमें इन जंगों की ज़रूरत नहीं है, हमें पीस की ज़रूरत है, हमें आपस में भाईचारगी से रहने की ज़रूरत है। तो ये उसके बारे में बताया हुआ इस पैराग्राफ के अंदर। The human race was drawing close together. The telephone, the telegraph, the wireless were helping the quick exchange of news and information. The aeroplane was linking distant parts of the world. The ignorance, poverty, disease, oppression in one part of the world were having their effect on the other parts. The world was becoming in some things. Why should it not become one? तो ये बताया हुआ कि क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके टेलीग्राफ, टेलीफोन और इस तरह की कम्युनिकेशंस की चीज़ें आई और फिर एरोप्लेन भी ईजाद हुआ, ये सब चीज़ें बनती गई, जिन्होंने दुनिया को इतनी दूर, पहले लोगों को ट्रैवल करने के लिए इतने इतने महीने लग जाते थे, लोग तब जाके किसी जगह पहुंचते थे, कभी कभी बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन अब दूसरे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने में कुछ घंटे लगते हैं और इंसान पहुँच जाता है। तो वक्त के साथ साथ हमारी कम्युनिकेशंस बेटर होती गई, दुनिया बिल्कुल ऐसे लगने लगा जैसे सुकड़ती जा रही है, छोटी होती जा रही है, आसान होती जा रही है कम्युनिकेशन। सो द यूनाइटेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड केम टुगेदर इन April 1945 and organized the UNO, United Nation Organization, or the United Nation for short. Let us not turn our eyes away from the sufferings of neighbors. Let us stretch the hand of brotherhood to one another. Let us unite to make the world a happier and a better place, and let there be peace and happiness in the world, they cried. तो फिर हमारे पास जाके बनी एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में यूनाइटेड नेशन कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका एम ये है कि पूरी दुनिया में अमन कायम किया जाए, भाईचारगी कायम की जाए। जो लोग परेशान हैं, भूख से मर रहे हैं, बीमारियों में पड़ गए हैं, गुर्बत में हैं, उनकी मदद की जाए। एक लॉ कायम किया जाए जिसके तहत जस्टिस मिले लोगों को और प्रोटेक्ट किया जाए ह्यूमन राइट्स को। Then the UN was thus born in April 1945 and is today the spearhead of the march of civilization against evils of all kinds. The United Nations of the world meet in New York in the United States of America. They talked over urgent problems of peace and war and try to find solution to as many of these as they can. तो इसमें बताया हुआ है कि यूनाइटेड नेशन 1945 अप्रैल में वजूद में आई और फिर उसके बाद एक समझे कमेटी के तौर पे ये सब कुछ चलता आ रहा है, जिसमें ये लोग डिफरेंट तरह के मुल्कों के मसाइल देखते हैं और उनको हल करने की कोशिश करते हैं, एक मुद्दे पे आने की कोशिश करते हैं। द यूनाइटेड नेशन डील्स विद द क्वारल दैट माइट लीड टू वॉर अमंग द नेशंस। द एम ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ टू प्रिवेंट वॉर इन द वर्ल्ड and to reach a state of lasting peace. General conditions of life are more or less unsatisfactory in many parts of the world. This unsatisfactory state of affairs is responsible for such discontent, and long continued discontent may lead to war. One way of preventing war is to remove as many causes of discontent as possible. So the United Nations have set themselves to study living conditions in all parts of the world and to help and fight against poverty, ignorance, disease, and social and political injustice.
तो इसमें ये बताया हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस का काम क्या होता है। वो पूरी दुनिया के मसाइल देखती है, किस मुल्क में क्या मसला चल रहा है, किस मुल्क में बहुत टाइम से एक मसला चल रहा है क्योंकि ये छोटे छोटे 2 मुल्कों में अगर फड्डे हो रहे हैं या इन 3 मुल्कों में फड्डे हो रहे हैं तो ये आगे जाके एक बड़ी जंग बन सकती है। तो उनको उन मसाइल को हल करने के लिए यूनाइटेड नेशन पूरा काम करती है, उनको देखती है, उनको पढ़ती है, उनके जो मेजर मसले होते हैं उन्हें हल करने की कोशिशें करती है ताकि आगे जाके फ्यूचर में कोई जंग वाक़ई ना हो। Preventing a war is difficult. It is a part of high politics. Feeling run high. Attempts to bring about peace are open to misunderstanding. Instead of bringing people together, attempts at peacemaking sometimes set them further apart. The path of the peacemaker is indeed hard. The UN has succeeded in a few cases in bringing peace where there was no peace before, but in a great many cases the results have not been satisfactory. The world is full of quarrel between nations. Any one of these little quarrels might be responsible for the outbreak of a new world war. But let us not despair, for there is one part of the work of the UN that fills up us with hope. दिस इज़ द वर्क ऑफ फाइटिंग सोशल ईवल्स। तो ये बताया हुआ है कि जब हमारे पास किसी मुल्क में किसी भी जगह पे जंग को रोकने की कोशिश की जाती है ना, तो वो ज़्यादा मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू कि अमन कायम किया जाए। अमन कायम करने के लिए जब हम लोग निकलेंगे तो हमें हमेशा हमेशा मुश्किलों का, दुश्वारियों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। जंग करना आसान है, लोगों को जंग की तरफ लेके आना बहुत आसान है, लेकिन अमन कायम करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। यही बताया हुआ है कि यूनाइटेड नेशन कोशिश करती है कि इन सारे मुद्दों को हल करे ताकि आगे जाके कोई जंग वाक़ई ना हो। Men and women from different parts of the world, of different races and religions, sit together, think and plan, and actually work together to improve conditions of life in countries they have not known before. This work brings the worker closer together than anything else can. It brings them closer to the people of the land which they are trying to help. Who would go to war with the people to those betterment one has given several years of one's life? तो ये बताया हुआ है कि एक ऐसी जगह है UN जहाँ पे लोग जमा होते हैं, डिफरेंट मैन और वुमेन जमा होते हैं और डिफरेंट उन मुद्दों को, उन मुल्कों के मुद्दों को, उन शहरों के मुल्कों के मुद्दों को बैठ के हल करने की कोशिश करते हैं। और इसको एक बेहतरीन मिसाल है टीम वर्क की। इसमें सब टीम वर्क के तौर पे काम करते हैं और एक मुद्दे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। Here an example of what international work means. Canals, rivers and lakes have always been natural highways in the flat parts of the world. Millions of people pass their lives in boats on the quiet inland waterways. In most of the Far East, half the people live on the great rivers. So the United Nations organized the inland water transport tour of Asian experts to view the operation of waterways in other parts of the world. तो ये बताया हुआ है कि इसकी छोटी सी एग्जाम्पल ये है कि यूएन के काम के इंटरनेशनल वर्क की एग्जाम्पल ये है कि जिस तरह हमारे पास जो कैनाल्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, एक मुल्क को दूसरे मुल्क से मिला रही होती हैं बहुत सारे, क्योंकि जो सेम समंदर का एक किनारा होता है वो दूसरे मुल्क में भी जाके लग रहा होता है, ये सब चीज़ें लग रही होती है। तो इस वजह से यूनाइटेड नेशंस ने जो है फार ईस्ट और इन जगहों पर जाके चेक किया, इनमें जाके पता किया कि हाँ क्या क्या हम इन चीज़ों को कैसे यूज़ में लाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट्स भेजे जिन्होंने पूरा टूर किया एशिया का और फिर अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। Members of the tour came from Burma, Indonesia, India, Pakistan, Thailand, and Vietnam. The group started by visiting Thailand, Burma, Pakistan, and India, and so as to learn about their problems. तो बताया हुआ है कि ग्रुप आया जिन्होंने इन मुल्कों में जाके ट्रैवल किया, उन मसलों को देखा कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या मसला हो रहा है, कैनाल्स और इन सब चीज़ों को देखा और फिर एक रिपोर्ट तैयार की। द एशियन देन वेंट टू यूरोप वेयर दे विजिटेड शिपयार्ड्स एंड वाटरवेज इन फ्रांस, जर्मनी एंड नेदरलैंड्स। तो ये बताया हुआ है कि फिर ये जो हमारे पास ये रिसर्चर्स थे, एशियंस थे, ये हमारे पास यूरोप गए, उन्होंने वहाँ पे जाके देखा कि अच्छा शिप यार्ड्स क्या होते हैं, वाटर यार्ड्स क्या होते हैं, फ्रांस में, जो जर्मनी में और नेदरलैंड में चल रही हैं, ये चीज़ें होती क्या है। उनका एक जो होता है ना एक विजन खोला जाके। दे सॉ न्यू टाइप्स ऑफ बोट्स इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड गोइंग ऑन टू द यूनाइटेड स्टेट। दे स्टडी वाटर ट्रांसपोर्ट ऑन द ओहियो एंड मिसिसिपी rivers and along the coastal canals. The member of the tour discussed the problem of water transport with experts in the countries they visited. All this information had to be brought over and sorted out to find what might be useful in Asia. The members of the tour returned to their countries and prepared not to initiate what they had seen in the West, but to do their own work with the wide background of experience. तो हुआ ये कि जब ये टूरिस्ट जाते थे और ये जो एक्सपर्टीज़ थे, ये सब एक्सपर्ट्स वगैरह ये सब जाके उन चीज़ों को नोट करते थे कि अच्छा इस मुल्क में इस तरह चल रहा है, इस मुल्क में इस तरह चल रहा है, तो वो जो बेस्ट आउटकम वाली चीज़ें होती थी उनको अपने मुल्क में अपनी जगहों पर जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे ताकि उनका भी एक प्रोडक्ट बढ़े, उनका भी कॉस्ट इफेक्टिव रहे उनकी हर चीज़।
UN Day is celebrated on 24th October every year. Patriotism today should mean loyalty, not only one's country but to the UN and its ideal. On the UN Day, we pledge ourselves anew to advance the cause of brotherhood and peace in the world. The birth of the UN, we hope, will one day look upon as an important event in the world history. तो ये हम सब उम्मीद करते हैं कि यूएन के जो एम्स हैं, जो कि असल में एक अमन कायम करना है, फ्रेंडली एक रिलेशनशिप कायम करना है दूसरे नेशंस के दरमियान में, सपोर्ट करना है डेवलपमेंट को, कल्चरल एक जो एक्शंस होते हैं, क्लाइमेटिक एक्शंस होते हैं, उनको सपोर्ट करना है, इंटरनेशनल लॉ को संभाल के रखना है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना है, और एक इकनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम जितनी भी आती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और जो लोग गरीब हैं, भूखे हैं और जो लाचार हैं, बहुत बेबस हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करनी है. Then comes the second part of the chapter that tells us about the how UN is organized. So let's get started. First, the central and principal organ of the UN is the General Assembly, where every of nation is represented. Each member nation can send 5 representatives to the assembly, but each member has only one vote. तो ये बताया हुआ है कि जो हमारे पास मेन सेंट्रल जो प्रिंसिपल होता है यूएन का, वो क्या है, जनरल असेंबली होती है, जिसमें हमारे पास जो है 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. ईच मेंबर, जो हर मेंबर है उसकी 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कि गिने एक उनका जो सबका मिला के एक ही वोट गिना जाता है. द जनरल असेंबली में कंसीडर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द पीस एंड टू द एडवांसमेंट ऑफ हैप्पीनेस एंड जस्टिस इन द वर्ल्ड. इट इलेक्ट्स इट्स ओन प्रेसिडेंट एट ईच सिटिंग. तो ये बताया हुआ है कि जनरल असेंबली किसी भी मुद्दे पे क्वेश्चन कर सकती है कि इस मुल्क में हम किस तरह पीस कायम कर रहे हैं, इस मुल्क में हम क्या काम कर रहे हैं, और अपना वो प्रेसिडेंट भी खुद ही सेलेक्ट करती है जनरल असेंबली. Besides 6 main committees for its usual work, committees of many kinds are appointed for special purposes and to prepare the work for the regular sitting of the assembly. तो ये बताया हुआ है कि 6 मेन कमेटीज़ तो होती हैं जो कि नॉर्मल काम कर रही होती हैं, जो उसमें मौजूद होते हैं. इसके अलावा स्पेशल पर्पसेस के लिए भी कमेटीज़ बिठाई जाती हैं, असेंबलीज़ में रेगुलर मीटिंग्स वगैरह होती हैं, ताकि ये सारी चीज़ें हल हो सकें. Number 2 is the Security Council is made up of 15 members. 5 of these are permanent. तो होता ये है कि 15 मेंबर्स का एक सिक्योरिटी काउंसिल बनता है, जिसमें से 5 जो होते हैं वो मेन परमानेंट होते हैं, जिनमें हमारे पास चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये सब आते हैं. जो बाकी के बचे हुए 10 हैं, 15 में से जो 10 बचे हैं, उनमें से 3 को हर साल इलेक्ट किया जाता है. जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 2 साल के लिए. तो जनरल असेंबली जो सबसे बड़ी हेड है वो इलेक्ट करती है सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को, सही है, और वो करती कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए. अगर हमारे पास इसमें ये होता है कि मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस हैव टू बी सपोर्टेड बाय एवरी वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स, दैट इज़ टू विच each of these nation has a veto. If one of them says no to any matter, it is dropped for the time of being at least. तो ये बताया हुआ है कि जब हमारे पास ये 5 जो परमानेंट हैं, वो हमारे पास जब कोई भी सेलेक्ट करने की बारी आती है तो इनके वोट लिए जाते हैं. अगर इन 5 में से किसी 4 ने हाँ कर दिया और 1 ने ना कर दिया, तो ना वाले की बात सुनी जाएगी. इसके लिए ज़रूरी है किसी मुद्दे पर आने के लिए कि 5 एक ही चीज़ पे राज़ी हों. Then comes the chief officer of the UN is the Secretary General. He has important political responsibilities. The chief officer हमारे पास थर्ड होता है. The Secretary General is appointed by the General Assembly with the approval of the Security Council. He serves for a term of 5 years until the election of his successor. तो ये बताया हुआ है कि जो हमारे पास जब हम लोग सेक्रेटरी जनरल लेते हैं, ये हमारे पास जनरल असेंबली अपॉइंट करती है, और कितने सालों के लिए करती है, हमारे पास 5 years के लिए करती है. Every year has the Secretary General makes a report to the General Assembly on the work of the organization. तो जनरल असेंबली का जितना भी काम होता है वो हमारे पास सेक्रेटरी जनरल संभाल रहा होता है, और सारी इसके रिलेटेड एक रिपोर्ट बनाता है. There are staff of about 3,500 people working directly under the Secretary General in New York. There are also other special branches of Secretariat with the hundreds of employees at various other centers. There is no place in the world where people from so many different nations work in the same organization as the headquarters of the UN. UN employees come to the Secretariat from nearly every country on the earth, but they do not represent their countries. Their outlook to be international. तो ये बताया हुआ कि जब भी हमारे पास यूएन में जो कंट्रीज़ होती हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो एज अ कंट्री के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं करती, वो बेसिकली यूएन को रिप्रेजेंट करती हैं. सही है. उसमें ये बताया हुआ है कि हमारे पास पूरा एक स्टाफ होता है, 3,500 लोगों का जो स्टाफ होता है, वो सिर्फ जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसके नीचे काम कर रहा होता है, और बहुत बड़ा स्टाफ होता है जो कि काम कर रहा होता है. हमने इतनी बड़ी टीम वर्क की मिसाल आज तक इससे पहले नहीं देखी. द सेक्रेटरीज हैज़ मच वर्क टू डू. द स्टाफ हैज़ टू प्रिपेयर द मैटर ऑफ द वेरियस मीटिंग्स
They have to manage the meetings, they have to keep a record of all the said and done. They have to prepare daily reports for the press and radio. During the various meetings, translators sit in soundproof cabins listening to the speeches and translating them at the same time so that each member can hear the speech in his own language through headphones. The staff does a great amount of scientific study of various urgent problems of the day. तो ये बताया हुआ है कि जो सेक्रेटरीट होते हैं, जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, वो सब मिलके काम करते हैं हमारे पास। इसमें ये होता है कि जो मीटिंग्स होती हैं उनको एक जगह पे रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, लिखा जा रहा होता है। जो ज़ाहिर है पूरी दुनिया के मुल्कों से लोग आ रहे हैं, तो सबको तो स्पीच समझ नहीं आएगी या लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, तो उनके लिए अलग से कैबिन्स तैयार किए जाते हैं जो कि साउंड प्रूफ होते हैं, ताकि उनको अपनी ही ट्रांसलेट हुई हुई लैंग्वेज में, जो उनकी ट्रांसलेट हुई हुई लैंग्वेज है, उसमें वो समझ सकें, पढ़ सकें कि वो बोल क्या रहे हैं। नंबर थर्ड पार्ट जो इस चैप्टर का है वो ये है, देर आर सेवरल स्पेशलाइज्ड बॉडीज़। अब इसमें हम लोग इस चैप्टर की जो स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। विद द वर्क ऑफ द यूएन, सम ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ द यूएन ऑर्गेनाइजेशन, some are independent but are closely connected with the work of UN. We can refer here to the work of only a few of these important bodies. There is an international bank which leads money to the member nations for carrying through some work of the public importance and usefulness, such as electric power plants, roads, railways, canals, flood control. An example of the wonderful effect of one of these loans is found in a small village of the west coast of Mexico. तो हुआ ये था कि मैक्सिको में एक स्मॉल कोस्ट जो थी, वहाँ पे इन्होंने इंटरनेशनल जो बैंक था उसने हमारे पास फंडिंग की थी, और फंडिंग करके उन्होंने किया ही था कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक प्लांट्स थे उनको चलवाया था। जब इलेक्ट्रिक प्लांट्स चलेंगे तो ज़ाहिर है वहाँ पे हमारे पास होगा क्या, वहाँ पे रेडियो स्टेशन चले, न्यूज़पेपर चले, नाइट स्कूल चलना शुरू हो गए, और ज़ाहिर है जब स्कूल चलेंगे तो वही बच्चे एडमिशन लेंगे, तभी बच्चे आके पढ़ने का शौक़ रखेंगे। तो उसकी वजह से हमारे पास जो स्कूल में बच्चों की तादाद थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई, सिर्फ एक लोन की वजह से जो कि इंटरनेशनल बैंक ने उसे दिया। Then comes there's a UN Children Funds named UNICEF, the friend of children all over the world. It specializes in the relief of children. तो जो बच्चों के जितने भी मामलात हैं वो हमारे पास कौन देख रहा होता है, यूनिसेफ देख रहा होता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक हमारे पास स्पेशल बॉडी का पार्ट है। ये हमारे पास क्या करता है, ये हेल्थ से डील कर रहा होता है। द WHO was started in 1946, but the permanent organization came into being on 7th April 1948 to work on international health. 7 April is now celebrated all over the world as the WHO World Health Organization Day. WHO advises members of countries on public health and on the control of diseases and makes war on many widespread diseases. In the Terai district of Uttar Pradesh, malaria has been wiped out by WHO teams, enabling farmers to raise their output by 50%. Example of UNICEF and WHO works is their fight against yaws, a disease of hot climates, for dies of yaws, but many dies helpless and live as a burden to their relatives. तो हुआ ये कि WHO का काम क्या था कि जिन जिन मुल्कों में जो एपिडेमिक्स होते हैं, जो एक बीमारी होती है वो फैल रही होती है, उनको ख़त्म करना। तो फिर इसी तरह हमारे पास जो इंडिया थी उसमें से उन्होंने मलेरिया को ख़त्म करने की कोशिश की। WHO ने यॉस की एक बीमारी होती है जो कि हॉट क्लाइमेट में होती है, उनको ख़त्म करने की कोशिश की, ताकि क्योंकि उसकी वजह से हो ही रहा था कि यहाँ तो लोग मर जाते थे, या जो लोग नहीं मरते थे वो एक ऐसी माजूरी में चले जाते थे और सारी ज़िंदगी के लिए अपने रिलेटिव्स पे एक बोझ बन के रह जाते थे। तो इन सब चीज़ों से डील हमारे पास WHO करता है। इंडोनेशिया, एज सून एज इट बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन, asked the UN to help them in their way in the war against yaws. There were said to be 10 million cases in the country when the work was taken up in 1950. तो इंडोनेशिया ने एक रिक्वेस्ट की कि भाई मेरी कंट्री में हमारे पास बहुत ज़्यादा यॉस का मसला फैला हुआ है, और फिर हमारे पास उसकी कंट्री की हेल्प करने के लिए मतलब सब के सब आ गए आगे। यूनिसेफ सप्लाइज मेडिसिन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेंड एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स टू ट्रेन इंडोनेशियन वर्कर्स. इंडोनेशियन सप्लाई बिल्डिंग वर्कर्स एंड ऑल द रिक्वायरमेंट हैड डिड नॉट हैव टू कम फ्रॉम अब्रॉड. तो यही बात हुई थी कि हमारे पास यूनिसेफ ने जो थे हमारे पास जब ख़राब हुए इंडोनेशिया के हालात, तो वहाँ पे जो वॉलंटियर्स थे उनको ट्रीट किया गया इस तरह के, आगे जाके वो हमारे पास जो वहाँ इंडोनेशिया के लोग थे उनको ट्रेन किया गया ताकि वो जाके क्या करें कि उसको काम करें. WHO ने भी डोनेशन दी, यूनिसेफ ने भी काम किया, इन सब ने मिल के उन इंडोनेशियंस की हेल्प की. In 4 years, the 100 of medical terms trained by the WHO and supplied with the transport and medicine by UNICEF had examined 11 million people and cured 300,000 who had yaws. तो yaws को भी ट्रीट किया गया और मलेरिया को भी ट्रीट किया गया. मेडिसिन बनाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मलेरिया और yaws के मसलों को हल किया जा सके, इन बीमारियों को जड़ से निकाला जा सके. In another few years, practically the whole country will be free from it.
Hunger is the special problem of the Food and Agriculture Organization (FAO), which was started in 1943. It sent experts to help countries that want advice on how to grow more food and other crops, how to control plants and animal diseases, how to protect food in storage and in general, and how to increase the yield of farm, fisheries, and forests. It also published useful literature on agriculture, forestry, and fishes. तो ये बताया भाई कि FAO जो हमारे पास एक फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे पास जो बीमारियाँ होती हैं, पौधों में जो बीमारियाँ हो जाती हैं, प्लांट्स को किस तरह उनके क्रॉप्स को अच्छा किया जाए, किस तरह उनसे हाई यील्ड प्रोडक्ट्स लिए जाएँ, किस तरह क्रॉप्स को बेहतर से बेहतर बनाया जाए ताकि एक्सपोर्ट अच्छी हो, इम्पोर्ट अच्छी हो, हर चीज़ में मुल्क को फ़ायदा हो, जो भी मुल्क है उसको फ़ायदा हो, उसकी अर्निंग्स बढ़ें। तो ये सब चीज़ों से हमारे पास कौन डील कर रहा होता है? FAO, दैट स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. The United Nations has a special organization to advance knowledge and science and culture, उसे कहते हैं UNESCO, by which people can get the required understanding and the habits of mind that will be useful for them in the modern world. तो ये यूनेस्को जो है हमारे पास इस तरह की चीज़ों से, एजुकेशनल चीज़ों से यूनेस्को डील कर रहा होता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें लिखें तरक्की करें, और जब लोग तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा. Less than half of the world children go to school. Most of the human race cannot read or write. Progress cannot go far along modern lines where hardly anybody can read. But UNESCO has found that where most of the people cannot read, learning their letters is not usually what they need to begin with. They need to learn some practical improvement in their ways of life, what they can quickly understand and accept as good. आफ्टर दैट दे रियलाइज द एडवांटेज ऑफ लर्निंग टू रीड. तो ये बात हुई कि हमारे पास अब जिस बंदे ने पढ़ा ही नहीं है शुरू से, उसको हम लोग स्टार्टिंग में रीड करके क्या मिलेगा, तो हम लोग उसको पहले कुछ प्रैक्टिकल स्किल सिखा देते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी आम इंसानों की तरह गुजार सके, और फिर उसको बोलते हैं कि अब आप इसमें रीडिंग पे तवज्जो देनी है. तो ये हमारे पास जो यूनेस्को है, ये हमारे पास बेसिकली एजुकेशन की चीज़ों से डील कर रहा होता है, लोगों को एजुकेट करने से डील कर रहा होता है. यूनेस्को कैन नॉट इट सेल्फ फाइंड द मनी टू रीच hundreds and millions to read. What it can do is to show various member nations how to go about the work and to supply certain kind of training and aids. As new ways of teaching of goods, books, pictures, films, and radio are worked out, the experience is reported to other countries where these may be useful. UNESCO tries to advance human well-being through education, science, and culture. This advantage international understanding which leads to पीस. तो यही बात है कि यूनेस्को हमारे पास जो है पढ़ाई से डील करता है, लोगों को एजुकेट करने से डील करता है. यूनिसेफ का मैंने बता दिया, इंटरनेशनल बैंक का ही बता दिया, WHO, FAO, इन सब चीज़ों को हमारे पास बता दिया जो कि बेसिकली UN की एक स्पेशलाइज बॉडीज़ हैं, ताकि जड़ से हम लोग ऐसा ना हो कि हम किसी एक मुद्दे को देखें और दूसरा मुद्दा रह जाए. हम जड़ से इन सारी बीमारियों का, गुर्बत का, भूख का, एक जो अनलॉफुल कंडीशन चलती है उसका, और ह्यूमन के जितने राइट्स हैं वो उन्हें दिलवाए जाएँ. जो एक फूड एंड एग्रीकल्चर हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री है या हमारी पूरी दुनिया में है, उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी हो हर मुल्क की, और मतलब वो खुद का फील हो मुल्क, ऐसा ना हो कि उसे लोन पे चलना पड़े. सही है. तो मैंने इसके आखिर में एक समरी भी रखी है, इसमें जो याद करने वाली बातें हैं जो पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में, वो भी मैंने एक पेपर पे पूरा ड्रॉ किया है. तो प्लीज़ लुक इनटू दैट. और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. और आप मुझे बता भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस चीज़ पे चाहते हैं. थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक